Hello students, I hope that you have already viewed the previous part of life process because the previous parts of life process contains very important questions for board examinations well. So, in this video, we will discuss about human respiratory system. In the beginning of this video, I would like to explain you what is the basic difference between the term breathing and respiration. From the beginning onwards, from the childhood onwards, the term breathing and respiration continuously there in the science book. But what is the basic difference? Either breathing or respiration both are the same thing or they are different. So, breathing is defined as inhalation and exhalation of air. Inhalation means intake of air and exhalation means exhale out air. No? That means when we intake air from our surrounding, that is called inhalation, and when we exhale out air from our body, that is called exhalation. This continuous process of inhalation and exhalation of air is termed as breathing. And what is respiration? Respiration means the mechanism or the process through which energy is released in our body. So, the process of releasing energy in our body in the form of ATP is respiration, and inhalation and exhalation of air is breathing. Now, we will discuss about human respiratory system. Before that, what do you mean by breathing rate? What is breathing rate? Breathing rate is defined as the number of inhalation and exhalation per minute. So, in the case of human beings, breathing rate is about 18 per minute. That means per minute human beings average is 18 time inhalation and 18 time exhalation. But when we are doing heavy exercise, then this breathing rate increases up to 25. जब हम बहुत कुछ ज़्यादा हेवी काम करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, बढ़ जाती है. वो 18 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है ना. तो एयर को इनटेक करना और एयर को बाहर निकालना, आउट करना, क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है. लेकिन जिस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड व्हाइल इन ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. This breathing takes place by the help of respiratory system. In human beings, proper respiratory system is there for breathing. This respiratory system starts from nostril. As we all know, in the face, two nostrils are there. That means one pair of nostrils are there. These nostrils are further connected downward. And one region starts, that region is called pharynx. What is pharynx? Pharynx is the region where food pipe and wind pipe both are common. हमारे नॉस्ट्रिल से जैसे ही हवा अंदर लेते हैं, है ना, एयर जैसे ही इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो एयर नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ पहुंचती है, नॉस्ट्रिल के बाद एयर पहुंचती है फेरेंक्स में. फेरेंक्स जो है ये नेक रीजन में है और ये ऐसा रीजन है फेरेंक्स जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों क्या है, कॉमन है. फेरेंक्स के जस्ट नीचे एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है. उसके बाद एयर वहां पे पहुंचती है एंड दैट वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लेरेंक्स. उस वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, लेरेंक्स कहते हैं. और ये जो विंड पाइप वाला पार्ट स्टार्ट होता है लेरेंक्स से, इस विंड पाइप को बायोलॉजिकली क्या कहा जाता है, ट्रैकिया. तो व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया इज द विंड पाइप ओनली. द अनदर नेम ऑफ विंड पाइप इज ट्रैकिया. फिर ये ट्रैकिया नीचे की तरफ आती है और ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. दिस डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इनटू टू पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई. So bronchi and trachea both are the same thing, but only difference is there. Trachea is a single tube, while trachea is divided into two different small tubes called bronchi. और यही ब्रोंकाई दोनों लंग्स में एंटर करते हैं, है ना. अब इस दोनों लंग्स में जब ब्रोंकाई एंटर करते हैं तो फिर ब्रोंकाई का फर्दर डिवीजन होता है. ब्रोंकाइज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अनदर स्मॉल ट्यूब्स. अब स्मॉल ट्यूब ब्रोंकाई से रिलीज हो रही है, इन डिफरेंट ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंकियोल्स. तो ब्रोंकियोल्स और ज्यादा फाइन डिवीजन हो गया. सबसे पहले ट्रैकिया आ रही थी ऊपर से नीचे, ट्रैकिया का दो डिवीजन हो गया. फर्स्ट दीज टू डिविजन्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई एंड आफ्टरवर्ड्स ब्रोंकाइज आर फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स. अब ये ब्रोंकियोल के बाद एयर जो है
ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करती है, एक बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर में एंटर करती है, एंड दैट बैलून सैक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वियोली, एंड मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज आर देयर इन आवर बोथ लंग्स, हमारे दोनों लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली है। एंड एल्वियोली इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोली में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस की साइट क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस की साइट क्या है, एल्वियोली, है ना। अब इसमें कई बातें सोचने की, समझने की, ये तो मैंने ओवरव्यू तुमको सिर्फ बताया, इससे रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल, सबसे पहले लंग्स के बारे में जान लेते हैं। लंग्स जो है ये पेयर में पाया जाता है, एंड द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा। व्हाट इज प्लूरा? प्लूरा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लंग्स। लंग्स के सबसे बाहर एक कवर होता है जो कि बायलेयर्ड है, इस कारण मैंने यहां पर 2 लाइनें खींची है। दिस बायलेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा, एंड दिस प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स लंग्स। अब क्या दोनों लंग्स की साइज एक होती है? क्या दोनों लंग्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी हैं एक दूसरे के? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम जितने भी बुक्स में डायग्राम देखते हैं वो डायग्राम क्या बताता है कि लंग्स दोनों एक जैसा ही है, लेकिन एक्चुअली बात क्या है, द लेफ्ट लंग इज कंपैरेटिवली समवॉट स्मॉलर देन द राइट लंग। जो लेफ्ट लंग होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है राइट लंग के मुकाबले। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग को हार्ट के लिए थोड़ी स्पेस बनानी होती है ना। तो टू ऑक्यूपाई हार्ट विद इन द सेम रीजन, लेफ्ट लंग इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द राइट लंग। जिस एरिया में लंग्स होता है, जो हमारी चेस्ट की एरिया है, उस एरिया को बायोलॉजी में थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म थोरेसिक? थोरेसिक मीन्स द कैविटी ऑफ चेस्ट। चेस्ट रीजन को बायोलॉजी में थोरेसिक कहते हैं। तो याद रखना, लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक रीजन एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लंग्स इज प्लूरा, एंड प्लूरा प्रोटेक्ट्स द लंग्स, है ना। अब इसमें क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब एक क्वेश्चन है, नॉस्ट्रिल से एयर आती है फेरेंक्स में, और मैंने तुमको बताया कि फेरेंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ऐसा आखिर कैसे हो सकता है कि व्हाई फूड डजंट एंटर हेयर? जो लंग्स की जो ये ट्यूब है, जो पाथवे है, इसमें फूड एंटर क्यों नहीं कर जाता है, जबकि फेरेंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ। फॉर फूड फेरेंक्स इज देयर एंड फॉर एयर फेरेंक्स इज देयर, देन व्हाई फूड डजंट गेट एंटर इन द ट्रैकिया? फूड जो है वो स्टोमक में ही जाता है, एयर जो है वो लंग्स में जाती है। आखिर ये प्रॉपर डिवीजन हो कैसे जाता है? तो इस प्रॉपर डिवीजन के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो ट्रैकिया है ना, इस ट्रैकिया के ऊपर एक कवर होता है। फेरेंक्स के बाद फूड पाइप तो पीछे की तरफ चली जाती है, और ट्रैकिया जो विंड पाइप है उसकी टिप ओपन होती है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपी मीन्स अपर एंड ग्लॉटिस इज अ मस्कुलर फ्लैप। एक मसल से बना हुआ एक कवर होता है, किसके ऊपर? ट्रैकिया के ऊपर। जैसे ही फूड हम खाते हैं या फिर हम जैसे ही वाटर ड्रिंक करते हैं, दैट कवर सडनली क्लोज ट्रैकिया। वो कवर क्या करता है? ट्रैकिया को बंद कर देता है। तो जैसे ही वो ट्रैकिया को बंद करता है तो फूड के लिए जो लंग्स का पाथवे है, वो लंग्स का पाथवे क्लोज हो गया। लंग्स का पाथवे क्लोज होने के बाद फूड जो है वो किसकी तरफ बढ़ता है? इसोफेगस से स्टमक की तरफ बढ़ता है। इस कारण कहा जाता है एट द टाइम ऑफ ईटिंग प्लीज डोंट टॉक। जब भी हम खाना खाते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हेन वी स्पीक अगेन एंड अगेन देन द ट्रैकिया विल वर्क एंड एपिग्लॉटिस विल रिमेन ओपन। दैट्स व्हाई समटाइम्स वी फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हाइल टॉकिंग एट द टाइम ऑफ ईटिंग। तो खाना लंग्स में क्यों नहीं जाता है, और फूड जो है वो स्टमक में क्यों जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कवरिंग, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। उस कवरिंग को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं, है ना। तो मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद इससे एक क्वेश्चन बनता है, कोई भी अगर ट्यूब है तो जब उससे हम बहुत फोर्स से, अगर कोई ट्यूब है जिससे पानी पास हो रहा है, या फिर कोई ट्यूब ऐसी है जिससे एयर पास हो रही है, तो अगर उसमें एयर कम हो जाए या फिर अगर वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए तो वो ट्यूब क्या करेगी? कोलैप्स कर जाएगी। तो आखिर विंड पाइप के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है ना। एट द टाइम व्हेन वी आर एक्सेलिंग द एयर, जब हम क्या करते हैं? एयर को एक्सेल आउट करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो ये जो दोनों ट्यूब के जो दोनों लेयर है वो क्या होना चाहिए? कोलैप्स हो जाना चाहिए। अब ये दोनों ट्यूब कोलैप्स क्यों नहीं करती है? ट्रैकिया आपस में कोलैप्स क्यों नहीं कर जाती है जब हम क्या करते हैं? एक्सेल आउट करते हैं।
तो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो इसके लिए एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, एंड दैट सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। पूरे के पूरे लंग्स में और लंग्स के ऊपर की जो ट्यूब्स है, चाहे वो ट्रैकिया हो, चाहे वो ब्रोंकाई हो, चाहे वो ब्रोंकियोल्स हो, इन सारी ट्यूब्स का एक सपोर्ट है। उस सपोर्ट को क्या कहते हैं? उस सपोर्ट को रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। एंड दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ट्रैकिया सो दैट ट्रैकिया विल नॉट कोलैप्स। तो यहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए। एक तो फूड क्यों नहीं एंटर होता है लंग्स में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कवरिंग कॉल्ड एपिग्लॉटिस। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लेस एयर ट्रैकिया डजंट कोलैप्स। अगर एयर की कमी भी हो जाए तो भी ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करती है कभी, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज हमने क्लास 9th में पढ़ा था। कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि हमारे ईयर के आउटर मोस्ट रीजन में, नोज के टिप में, उसी ट्रैकिया से बने हुए रिंग्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं किसको? ट्रैकिया को, है ना, जिसके कारण ट्रैकिया कभी कोलैप्स नहीं करती है। इसके बाद हम आते हैं नीचे, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है मस्कुलर सीट। इस मस्कुलर सीट को डायफ्राम कहते हैं। यू ऑल हैव नोटिस्ड व्हाट? व्हेन वी इनहेल एयर सडनली वी फील दैट आवर स्टमक इज फुल ऑफ एयर। ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा स्टमक एयर से भर चुका है जैसे ही हम इनहेल करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ही हम इनहेल करते हैं ना, तो ये जो डायफ्राम है ये क्या हो जाता है? ये डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाता है। इनहेल कर लिया हमने, इनहेल तो हमने टुवर्ड्स द ग्रेविटी किया तो आसानी से हो गया, है ना, तब भी वी फील प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर सीट। लेकिन जैसे ये हमें एक्सेल करने की बारी आती है तो एक्सेल करेंगे तो क्या करेंगे? हम अगेंस्ट द ग्रेविटी करेंगे। तो एक्सेल करने के लिए एक सपोर्टिव प्रेशर चाहिए होता है। वो सपोर्टिव प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है? डायफ्राम। डायफ्राम एक ऐसी मस्कुलर सीट है जो कि आसानी से एक्सेल करने में हेल्प करती है, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को सपोर्ट करती है। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम की पोजीशन डाउनवर्ड हो जाती है, जैसे ही हम एक्सेल करते हैं तो इसकी पोजीशन क्या होती है? वापस अपने मीन पोजीशन पे आता है। तो इसके कारण एक्सेलेशन बहुत इजी हो जाता है ना, तो इसको याद रखना है। उसके बाद एक टॉपिक आता है बहुत आसान सा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो हमने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, ह्यूमन बींग्स में मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का? तो ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले इनहेलेशन कहां से होता है? नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल के बाद जो एयर है वो कहां जाता है? फेरेंक्स में। फेरेंक्स मैंने तुमको पहले ही बता दिया, कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का। उसके बाद मैंने एपिग्लॉटिस को थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, क्यों? क्योंकि एपिग्लॉटिस से क्वेश्चन ही बना था कि एपिग्लॉटिस ही एक ऐसी ओपनिंग, एक ऐसा कवर है जो कि फूड और एयर को क्या करता है? सेपरेट करता है। उसके बाद एयर कहां पहुंचता है? एपिग्लॉटिस में। एपिग्लॉटिस से कहां पहुंचता है? लेरेंक्स में। फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर दो ट्यूब में डिवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। आफ्टर ब्रोंकाइज आर डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। एंड फाइनली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में एयर पहुंच जाता है, वो मिलियंस ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम एल्वियोली। एल्वियोली को मैंने हाईलाइट किया है, क्यों? क्योंकि एल्वियोली इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। और एल्वियोली से एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, क्या? हाउ लंग्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए लंग्स में कौन सी डिजाइन मौजूद है, या लंग्स कैसे डिजाइंड है जिससे कि लंग्स की सरफेस एरिया बढ़ जाए फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली है, एंड एल्वियोलीज आर द स्फेरिकल बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये बैग शेप्ड है, बॉल शेप्ड है, जिसमें कि क्या होता है? साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। यहीं पे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर वापस एल्वियोली में आ जाती है, और हम ऐसा एयर एक्सेल करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है ना। तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो क्या है? तुमने सबने नोटिस किया होगा इस बोर्ड पे यहां पर एक रफ एक्वेरियम बना हुआ है जिसके अंदर 3 फिशेस आर विजिबल। अब इसको इस टॉपिक में मैंने क्यों बनाया? तो इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमारी ब्रीदिंग रेट ज्यादा है कि, क्योंकि हम तो लैंड पे रहते हैं और ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, है ना। तो एक्वेटिक लाइफ की ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी, है ना। एक्वेटिक लाइफ दैट मींस ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर। तो याद रखना हमेशा, एक्वेटिक लाइफ कोई भी हो, either they are fishes or they are other creatures those who are living inside water,
हमेशा एक्वेटिक लाइफ की जो ब्रीदिंग रेट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक लाइफ में गिल्स मौजूद होते हैं और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ही ले पाता है, और हम जानते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन डिमांड की फुलफिल करने के लिए इनको बहुत हाई रेट से ब्रीदिंग करनी पड़ती है। तो मतलब इफ वी कंपेयर अ ह्यूमन बीइंग टू अ फिश, तो ब्रीदिंग रेट किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली फिश की ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज वी ह्यूमंस आर टेरेस्ट्रियल क्रिएचर, हम लैंड पे रहते हैं, और लैंड पे रहते हैं तो वी हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन टू इनहेल, बट fishes doesn't have sufficient oxygen because they are dependent on dissolved oxygen which is available inside the water. That's why the breathing rate is comparatively faster in aquatic organism compared to terrestrial organism. If this question will come in your examination, you have to explain like that. No, the amount of oxygen is less in water compared to atmosphere. That's why the breathing rate in aquatic life is more than terrestrial life. I hope you have already understood this concept, but for proper understanding, watch this video twice. And thank you for your support in this video, because the life process, the complete all parts of life process crossed around 2500 views in the YouTube. Thank you for that. And in this last video, we will discuss about one question that you have to answer in the comment box. That is, who was the first person to visualize human respiratory system? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिस्कवरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हायर क्लासेस में पढ़ना है। फिर तुमको सिर्फ इतनी सी बातें जाननी है कि ह्यूमन, तुमको एक सर्च करना है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे पहली जो तस्वीर है, जो एक्सरे डिफ्रेक्शन इमेज है, वो किसने देखी थी, है ना? यू हैव टू कमेंट द पर्टिकुलर नेम in the comment box. Okay, thank you. That's all for this video.